Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Samar Noreen. I am lecturer chemistry. As per my qualification is concerned, I'm done with MPhil organic chemistry और मेरा teaching experience 5 years का है. I have taught from basic level to higher level, that is from metric to BS honors chemistry classes, and also ADS, or you can say BSc student classes. So this is all about my introduction. Now let's move towards our today's topic of discussion. Today we will learn about the reactivity of benzene. Any class of organic compounds, उसकी understanding के लिए reactivity को understand करना बहुत ज़्यादा important है. इसकी बहुत ज़्यादा significance है. उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि उनका pattern of reaction क्या है. तो बेंजीन परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. Now what is electrophilic substitution reactions? Electrophilic mean electrophile, any species that is in search of electrons. Substitution, it means it will be substituted on benzene. We will understand this by general mechanism. Here you can say this E is electrophile. E has positive charge which depicts its electron deficiency. Benzene use its pi electron to attack on this electrophile, and this intermediate form is generated. When this carbon form a bond between benzene and definitely electrophile, then this carbon on which positive charge is shown here become electron deficient. क्योंकि इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड रह गए हैं. कार्बन की सेटिस्फेक्शन है 4 बॉन्ड्स. इसकी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रेवल करता है, जैसे एरो से शो किया जा रहा है. तो फिर डेफिनेटली ये वाली कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगी. तो इसकी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ डेफिशिएंसी आ जाएगी. इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में मूव करते रहते हैं अपने नेबरिंग कार्बन्स की डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए. This is the intermediate which is resonance stabilized, and this intermediate is called, you can say it, carbocation or benzoniamine or areniamine. Okay. After the formation of carbocation, the next step is the proton abstraction. Any base which is present in the system would abstract this proton, the proton from the same carbon on which electrophile is attached. उसी कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये दोबारा रिंग में आ जाएगा, और बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी यहाँ से लूज हुई थी, इधर आके एरोमेटिसिटी लूज हो गई, वो दोबारा से फाइनल प्रोडक्ट में रीगेन हो जाएगी. यानी 3 उसमें डबल सिंगल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स बन जाएंगे और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. यू कैन सी हियर इलेक्ट्रोफाइल इज नाउ अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग in the place of hydrogen atom. So hydrogen is replaced, that is why it is called substitution reactions. All other examples of benzene substitution reactions will follow this general pattern. So let's move towards specific example. We have example of nitration. Nitration means the introduction of nitro group, that is NO2 group would be introduced in the benzene ring. Let's have its general reaction. This is benzene. We use sulfuric acid and nitric acid as reagent. Below 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन है. ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे अगर बेंजीन को, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका नाइट्रोबेंजीन जनरेट हो जाएगा. लेट्स हैव इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म असल में क्लियर कर देता है कि किस तरह से फॉलो किया है पैटर्न और कैसे प्रोडक्ट बने. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट करेंगे आपस में. नाइट्रिक एसिड का ये ऑक्सीजन जो है OH वाला, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन लेगा और खुद यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा, जो कि ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म नहीं है. तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है.
इसकी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऊपर आ जाते हैं। और ये अगर आप देखें, थोड़ा सा नोट करें, तो ये पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। और इस नाइट्रोजन पे अब डेफिशिएंसी आ गई है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इस पे जब डेफिशिएंसी आएगी इस नाइट्रोजन पे, वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रेशन। ये इलेक्ट्रोफाइल आगे नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, और ये H2SO4 कन्वर्ट हो गया है HSO4 नेगेटिव। और इसको हम एट द एंड वो जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन है उसके लिए यूज करें। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, नाउ बेंजीन वुड अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा। और वही एरीनियम आइन जो जनरल मैकेनिज्म है हमने देखा, वही दोबारा से जनरेट होगा। और उस एरीनियम आइन में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन लास्ट स्टेप है, उसके लिए हमारे पास सिस्टम के ही अंदर बेस प्रेजेंट है HSO4 नेगेटिव। वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोबारा से बेंजीन रिंग में आ जाएगा, और उसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। दिस वुड बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, एंड यू कैन सी हियर HSO4 गेन प्रोटॉन एंड बिकम H2SO4। तो वो रिएजेंट जो हमने स्टार्ट में यूज किया था वो दोबारा से रीगेन हो गया। रिएजेंट भी उनका काम यही होता है कि वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अपनी उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिसमें वो यूज किए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। वी हैव हेलोजिनेशन। इसका नाम ही डिपिक्ट कर रहा है कि हेलोजिनेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे इन्होंने हेलोजन में एग्जांपल ब्रोमीन की ली है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए, कोई लेविस एसिड, AlCl3 भी यूज कर सकते हैं, FeBr3 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, दोनों में से। सो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी ब्रोमोबेंजीन। दिस वुड बी आर ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट। नाउ लेट्स हैव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे जो लेविस एसिड्स होते हैं ना, FeBr3 है जैसे, लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में, अब क्योंकि ये भी डेफिशिएंट है तो उसके साथ वाला भी डेफिशिएंट है, तो इस पे बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास FeBr4 बन जाएगा, FeBr4 नेगेटिव। इसको हम एज अ बेस बाद में यूज करेंगे। और ये Br अटैच हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये Br अटैच हो गया, और ये एरीनियम आइन बन गया, जो हमारा इंटरमीडिएट होता है एरीनियम आइन। इस पे अब बेस यानी वही FeBr4 नेगेटिव अटैक करेगा, और बेस को प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और दोबारा से आपका बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी इस फॉर्म। फाइनल प्रोडक्ट वुड बी आर ब्रोमोबेंजीन, और ये HBr की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाए, बेस के साथ HBr बन के वो निकल जाएगा, और FeBr3 एट द एंड दोबारा रीगेन हो जाएगा। So this is the halogenation. This was all about our today's topic. Let's have the key points. We have discussed about the electrophilic substitution reaction of benzene. उसका जनरल मैकेनिज्म हमने देखा है, और उस जनरल मैकेनिज्म के बाद हमने उसकी दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखी हैं, एक नाइट्रेशन और दूसरा हमने स्टडी किया है हेलोजिनेशन। So you feel free if you have any question regarding this topic. This is all about our today's discussion. Thank you so much. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.